Hello and good morning, students. Welcome to this video lecture series. Dear students, as you know, we have already started past tense. Yesterday we talked about past simple tense and we talked about the actions. Okay, actions like actions that took place in the past, activities that happened in the past, things that occurred in the past at a certain point in the past, and they have no connectivity with the present. Such actions, such activities are in past simple tense. Alright, means whatever happened that happened in the past, such activities, such occurrings are always past simple tense. Alright, then we talked about past habits. Past simple tense expresses past habit. By using second form of the verb in a sentence, you can describe somebody's past habit. Keep in mind, not present habit, past habit. Alright, somebody's childhood habit or somebody's habit that he or she has abandoned now. Alright, so yesterday we talked about actions or the activities that took place in the past. Then secondly we talk about past habits. Alright, thirdly, today we'll talk about the third situation, that is there are certain phrases. Okay, these phrases always take the second form of the verb. Alright, the phrases like it is time, it is high time, it is about time. Alright, इन phrases के बाद we always use second form of the verb. इन phrases के बाद हम verb की second form use करते हैं. As I told you yesterday, past simple tense में we use the second form of the verb irrespective of the person or the number of the noun. हमारा नाउन का कोई सा भी पर्सन हो, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यू हैव टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सिमिलरली वॉट एवर द नंबर, आइदर इट सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, वी आर ऑलवेज टू यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. गॉट इट? इज इट क्लियर? So these phrases like it is time, it is high time, it is about time, they are always followed by second form of the verb. Means these phrases, okay, they are in sync with past simple tense. Means these phrases always take the second form of the verb. Got it? Then we'll talk about the suppositional sentences. Suppositional means you are just supposing, you are just imagining, you are imagining past action. Alright, so that is past imagination, and truly the thing is that the things are not possible right now. In suppositional sentences you simply suppose, you simply imagine. आप इमेजिनेशन करते हो कि काश ऐसा होता तो ऐसा होता, ये होता तो ये करता, लाइक दिस. जैसे कि अगर मैं इस देश का पीएम होता तो मैं ऐसा करता, मैं कलेक्टर होता तो ऐसा करता, मैं सरपंच होता तो ऐसा करता, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल. Got it? फ्यूचर में पॉसिबल हो नहीं हो, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट फॉर द elapsed टाइम that is not possible at all. So that is impossible task. So in suppositional sentences में आप simply you are supposing, you are imagining. Alright, then you talk about two actions and more than two actions that took place at the same time. ऐसे दो एक्शन और तीन एक्शन पास में एक साथ हुए. जैसे मैं आया और पढ़ाना शुरू किया, वह आया और खाना खाया, वह आया और गया. ऑलराइट, सो ये सारे एक्शंस होते हैं पास्ट टेंस के और स्पेशली पास्ट सिंपल टेंस के. ऑलराइट, सो लेट्स हैव अ लुक. पास्ट टेंस, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम. ये वो फ्रेजेज हैं, इन फ्रेजेस के बाद वी ऑलवेज यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ऑलराइट, सो लेट्स हैव अ लुक. It is time I started my work. It is time I started my work. ये टाइम आ गया है कि मैं अपना काम शुरू करूं. See, the sense cannot be in past. Okay, सेंस का पास्ट पर नहीं जा रहा है. It is time, अब टाइम आ गया है कि मैं काम शुरू करूं. और आप ऐसी एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, ऐसा अज्यूम कर रहे हो कि इस टाइम तो मुझे काम करना चाहिए था. Got it? You feel that it is time, it is high time
that I started working, I studied seriously. Got it? Is it clear? So ये देखो, it is time, ये हमारा phrase है, and it takes here the second form of the verb. It is time I started my work means ये वो समय है जब मुझे अपना काम शुरू करना है, करना ही करना है, या ये समय है जब मुझे काम शुरू कर देना चाहिए था. मीन्स एट द टाइम आई शुड बी वर्किंग, अभी तो मुझे काम करना चाहिए था. इट इज़ टाइम आई स्टार्टेड माई वर्क. सपोज आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो यू मस्ट थिंक दैट इट इज़ हाई टाइम आई स्टडीड सीरियसली. बहुत सही समय आ गया है और मुझे सीरियसली पढ़ाई करनी चाहिए और करनी है. गॉट इट? सो इट इज़ टाइम आई स्टार्टेड माई वर्क. ये बिल्कुल प्रॉपर टाइम है, अभी मेरे काम करने का टाइम है. आई स्टार्टेड माई वर्क, मुझे अपना काम शुरू करना है. ऑल राइट, विदाउट एनी डिले, कोई देरी नहीं होगी इसमें. ओके, दैट इज़ योर रियलाइजेशन. नेक्स्ट, इट इज़ हाई टाइम. ये बहुत ही एक्सट्रीम हाई टाइम है, मतलब एकदम परफेक्ट टाइम है. ऑल राइट, यू स्टडीड सीरियसली, एग्जाम्स आ रहे हैं तुम लोगों के. इट इज़ हाई टाइम, ये बहुत ही प्राइम टाइम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है, एंड यू मस्ट मेक द मोस्ट ऑफ इट. आपको इस टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन करना चाहिए. सो इट इज़ हाई टाइम यू स्टडीड सीरियसली. ओके, इट इज़ हाई टाइम यू इंश्योर्ड सेफ्टी. कोरोना फैल रहा है, ओके, ऑल अक्रॉस द ग्लोब. सो इट इज़ हाई टाइम यू इंश्योर्ड योर सेफ्टी, कि आप अपनी सेफ्टी सुनिश्चित करें. लॉकडाउन धीरे धीरे ओके अनलॉक हो गया है, खुल गया है, बट यू शुड नॉट बी नेग्लिजेंट. यू मस्ट कैरी आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर गिवन बाय गवर्नमेंट. ऑल राइट, सो इट इज़ हाई टाइम यू इंश्योर योर सेफ्टी. ये बिल्कुल पीक टाइम है कि हमें अपनी सेफ्टी सुनिश्चित करनी चाहिए और कर लेनी चाहिए. गॉट इट? इट इज़ हाई टाइम. इट इज़ अबाउट टाइम दैट आवर कंट्री इन्वेस्टेड इन एजुकेशन. ये वही टाइम है जब हमारी कंट्री को एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है. हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है. ऑल राइट, सो हम ऐसा फील करते हैं दैट इट इज़ अबाउट टाइम दैट आवर कंट्री इन्वेस्टेड इन एजुकेशन, कि हमारी कंट्री को, हमारी गवर्नमेंट को एजुकेशन में और ज़्यादा इन्वेस्ट करना है और करना होगा. ऑल राइट, सो ये वो इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, ये कहते हैं कि ये अभी एक्सट्रीम प्रॉपर टाइम है, अब ज़्यादा देरी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये काम करना है या करना चाहिए था या शुरू हो जाना चाहिए था. ये सेंस आता है इन सेंटेंसेस का. ऑल राइट, मीन्स अभी प्रॉपर टाइम है एंड वी मस्ट स्टार्ट. अगर स्टार्ट नहीं किया है तो हमें स्टार्ट करना है. Got it? So you must keep in mind these phrases. It is time, it is high time, it is about time. Okay? You must remember, you must keep these phrases in your mind, and always remember that these phrases always take the second form of the verb. Got it? Is it clear or not? All right? Yes. अब आता है सपोजिशनल सेंटेंसेस. सपोजिशनल मीन्स सपोजिंग, यू आर सपोजिंग, आप जस्ट यू आर इमेजिनिंग, आप जस्ट कल्पना करते हो. ओके, और ये बताता है पास इमेजिनेशन. कल्पना भी किस चीज़ की करते हो? पास टेंस पढ़ रहे, सपोजिशनल सेंटेंस पास का इमेजिनेशन कर रहे हो आप लोग. पास में काश ऐसा होता, ये होता, अगर मैं ऐसा होता, काश ऐसा होता तो ऐसा करता, काश ये होता तो वो होता. सो नाउ थिंग्स कैनॉट बी ऑल्टर्ड. अब चीज़ें चेंज नहीं हो सकती हैं. पास का जो हुआ वो सो हुआ, लेकिन आप सिंपली यू आर इमेजिनिंग, आप सिंपली थोड़ी कोरी कल्पना करते हो. ऑल राइट, इज इट क्लियर? सो इसलिए इनको कहते हैं सपोजिशनल सेंटेंसेस. सो सपोजिशनल सेंटेंसेस में क्या होता है? देयर आर ओके सर्टेन वर्ड्स, इफ, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, आई विश, ही विशेज, एटसेट्रा. आई विश का मतलब होता था काश, इफ ओनली काश, एज इफ मानो, एज दो मानो ऐसा हुआ या ऐसा किया और ऐसा है. ऑल राइट, सो यू मस्ट कीप इन माइंड दीज वर्ड्स. ओके,
they, whenever they are used in past tense, they are always suppositional. Got it? See, he instructed us as if he were our, he instructed us as if he were our boss. आप इधर instructs भी कर दो, no problem. He instructs as if he were our boss. देखो, as if he instructs, वह निर्देश कैसे दे रहा है? as if मतलब मानो he were our boss, मानो कि वह हमारा बॉस हो. ऑल राइट. सो देखो, इधर ही वर है सेकंड फॉर्म, बी की सेकंड फॉर्म, लेकिन मीनिंग क्या पास में नहीं जा रहा है. इसका जो सेंस आ रहा है वो प्रेजेंट में आ रहा है. वो ऐसे निर्देश दे रहा है जैसे कि मानो वो हमारा बॉस हो, न कि बॉस था. बट यहाँ पे हमने यूज़ किया है ये एज इफ. जब भी एज इफ यूज़ करेंगे इट विल बी फॉलोड बाय सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ऑल राइट. एंड दैट्स व्हाई हियर वी यूज वर. ऐसे निर्देश देता है जैसे कि हमारा बॉस हो. गॉट इट. इफ आई बिकेम सरपंच, सेकेंड फॉर्म. इफ आया यहाँ पे, इफ अगर मैं सरपंच बनता, आई वुड डू डेवलपमेंट, मैं विकास करता. सरपंच बना नहीं, विकास हुआ नहीं, कोई और बन गया. गॉट इट. इज इट क्लियर? सो ये भी क्या सपोजिशनल है. यू आर जस्ट सपोजिंग दैट सपोज यू वर सरपंच, यू वुड डू दैट. अगर आप सरपंच होते तो आप ऐसा करते. सो दैट इज सिंपली योर इमेजिनेशन ऑफ योर पास्ट. आप पास्ट की परिकल्पना करते हो, पास्ट का इमेजिनेशन करते हो. एंड पास्ट दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, वो पास्ट जो कभी चेंज नहीं किया जा सकता है. गॉट इट. इज इट क्लियर? सो इफ आई बिकेम सरपंच, आई वुड डू डेवलपमेंट. मैं अगर सरपंच होता या बनता तो मैं डेवलपमेंट करता, विकास करता. आई विश आई वर द कलेक्टर ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट. आई विश मतलब होता है काश. आई वर द कलेक्टर, काश मैं अपने जिले का कलेक्टर होता. सो दैट इज जस्ट योर सपोजिशन, दैट यू आर जस्ट सपोजिंग, यू आर जस्ट इमेजिनिंग. ये आपकी इमेजिनेशन है. अगर मैं कलेक्टर होता, अभी तक आप कभी कलेक्टर हुए नहीं हो. गॉट इट. सो आई विश, ये आई विश आते ही आपने यूज़ किया है यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई विश, ही विशेज एट्सेट्रा. सो यहाँ पे आया आई विश. आई विश के साथ भी यूज, ऑलवेज यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज पास्ट सिंपल टेंस. आई विश आई वर द कलेक्टर ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट. काश मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता. गॉट इट. देन कम्स when two actions completed at a time. जब दो एक्शन और मे बी मोर देन टू एक्शन completed at a time. completed मतलब पूरे हो गए, किसी एक टाइम पर कंप्लीट हुए. पास में कभी भी कोई दो एक्शन और दो से ज़्यादा एक्शन कंप्लीट हुए. जब दो या दो से ज़्यादा एक्शन पास में एक ही टाइम पर कंप्लीट होते हैं तो यू जनरली यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ऑलराइट. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ही केम एंड हैड लंच. वो आया और उसने लंच किया. तो ही केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई एंड हैड लंच, लंच किया. गॉट इट. तो उसका आना और लंच करना एक ही टाइम पे हुआ था. गॉट इट. इन द आफ्टरनून ही केम एंड हैड लंच. आफ्टरनून में वो आया, लंच किया एंड वेंट अवे, चला गया. तीन एक्शन हो गए. ही केम, हैड लंच एंड वेंट अवे. गॉट इट. तीनों काम एक ही टाइम पे पास में हुए हैं. कब? आफ्टरनून में. इन द आफ्टरनून ही केम, हैड लंच एंड वेंट अवे, चला गया. गॉट इट. नेक्स्ट सेंटेंस. सो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी हैड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है. फर्स्ट फॉर्म हैज़ और हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड. ऑलराइट. नेक्स्ट, दे क्लोज द शॉप. क्लोज द शॉप एंड वेंट अवे. उन्होंने शॉप को बंद किया, दुकान बंद की और चले गए. दुकान बंद करना और चले जाना एक टाइम पे हुआ है पास में. गॉट इट स्टूडेंट. सो आज हमने क्या बात की? टुडे वी टॉक्ड अबाउट सर्टेन फ्रेजेस. इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम एंड इट इज़ अबाउट टाइम. दीज फ्रेजेस ऑलवेज टेक द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. जस्ट कीप इन माइंड. ये जब भी फ्रेजेस आते हैं आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है. और मीनिंग ये ज़रूरी नहीं कि पास में हो, ये प्रेजेंट में भी हो. ये क्या बताता है? अर्जेंसी बताता है.
कि अभी ये होना चाहिए था, इट इज़ हाई टाइम आई स्टडीड हार्ड, ये समय है जब मुझे अच्छा पढ़ना चाहिए। आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, गॉट इट। सो ये फिर इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, दैट यू मस्ट कीप इन माइंड। देन सपोजिशनल सेंटेंसेज आते हैं, इसमें हमने पढ़ा इफ़, एज इफ, एज दो, इफ़ ओनली, आई विश, ही विशेज, शी विशेज, दे विश, यू विश, आई विश। ये सारे क्या बताते हैं कि वी आर जस्ट सपोजिंग, वी आर जस्ट इमेजिनिंग। और ऐसे सपोजिशनल सेंटेंसेस में जब हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं इफ़, एज दो, इफ़ ओनली, आई विश, ही विशेज, सो दीज वर्ड्स ऑलवेज टेक द सेकेंड फॉर्म द वर्ब। इनके बाद में आने वाले फ्रेज में ऑलवेज यू विल फाइंड द सेकेंड फॉर्म द वर्ब, एंड दिस इज सिंपली पास इमेजिनेशन। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट action, two and more than two actions took place at the same time in the past। पास में किसी समय एक ही समय पर दो तीन काम एक साथ में हुए हैं, then always you use second form of the verb, second form of the verb or second form of the verb। Got it? Is it clear? He came, attended the class and went away। आया, क्लास अटेंड की और चला गया। Got it? So dear students, you must keep in mind, yesterday we talked about action took place in the past, then we talked about past habit. Okay, apart from those two situations, conditions, we talked about these three situations. I hope you must have got it. Thank you very much. See you soon in my next video. Goodbye.